Good morning, students. Welcome back to biology classroom once again. I hope all of you watched the last video. Today I will start heart. Look at the book. The heart is an organ which pumps the blood to the all parts of our body through blood vessels. So normally, heart is the main organ which pumps the blood throughout the body with the help of tube-like structure that is known as blood vessels. Our heart beats continuously to circulate the blood. मतलब हार्ट ऑलवेज बीट करता है मतलब पंप करता है continuously to circulate the blood throughout our body. The heart lies between the two lungs and just above the diaphragm. So this location is very important. Where is the heart? Heart is the between the two lungs and just above our diaphragm. The size of our heart is roughly equal to our fist. तो नॉर्मली हम लोग का मुट्ठी का जो साइज है वैसे ही हम लोग का हार्ट का भी साइज है. The heart is made of a special muscle called cardiac muscle, but it is a not solid muscle. So a heart, it is a consist of a cardiac muscle, but this kind of muscle is not solid muscle. The heart is hollow inside. Heart जो है वो बीचों बीच hollow है मतलब फुल नहीं है. Circulation of blood. The heart has four compartments called chambers. The upper two chambers of heart are called atria or auricle. Same way, the lower two chambers of heart is known as ventricles. So normally heart जो है हार्ट का 4 कॉम्पार्टमेंट है. ऊपर वाला कॉम्पार्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे ऑरिकल एंड नीचे वाला को बोलेंगे वेंट्रिकल. Atria receive the blood from organs of the body and pump it into the ventricles, while ventricles pump the blood received from atria out of the heart to different organs of the body. तो नॉर्मली फर्स्ट ऑट्रिया का काम क्या है? वो ब्लड रिसीव कर रहा है. रिसीव करने के बाद वो वेंट्रिकल को धकेल दे रहा है. वो जो ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करने के बाद पूरा बॉडी में फैल रहा है. The right auricle receive the impure blood while left auricle receive the pure blood. Here is a difference. Right auricle जो है that receive the impure blood and left auricle जो है that receive the pure blood. मतलब impure blood पूरा शरीर से वो कलेक्ट कर रहा है और प्योर ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में धकेल रहा है. लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वहां से पूरा शरीर में फैल जाएगा. ब्लड एंटर्स द हार्ट थ्रू टू लार्ज वेन्स, द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. लुक एट द डायग्राम. दैट इज द सुपीरियर वेना केव एंड इंफीरियर वेना केव. मतलब ये दो वेना केवा के द्वारा नॉर्मली ब्लड जो है हम लोग का हार्ट में घुस रहा है पूरा शरीर से. लुक एट द डायफ्राम, लुक एट द पिक्चर. सुपीरियर वेना केव कलेक्ट द इंफीरियर ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. सेम वे इंफीरियर वेना केव collect the blood from the lower part of the body. So two vena cave actually receive the blood and it push the blood into the heart. The superior vena cave receive impure blood from the upper part of the body. Same way, inferior vena cave receive the impure blood from the lower part of the body. They release these impure blood into the right auricle of the heart. तो नॉर्मली ये वेना केव जो ब्लड कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करने के बाद ये रिलीज कर रहा है कहाँ पे? राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के जंक्शन में देखो एक तो भाल्व है जिसका नाम है, मतलब ये ओपनिंग. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्राइकस्पिड भाल्व? दैट इज द ओपनिंग ऑफ राइट ऑरिकल इनटू द राइट वेंट्रिकल. हियर इज अ ट्राइकस्पिड भाल्व. The blood then flows from right auricle to right ventricle and then to the lungs through pulmonary artery. तो नॉर्मली राइट ऑरिकल से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है
ये पाल्मोनरी वाल्व के द्वारा लंग्स में दोबारा जा रहा है। The gaseous exchange in the lungs turns the deoxygenated blood to oxygenated blood. ये पाल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो ब्लड निकल के दोबारा लंग्स में जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड से चेंज होके ऑक्सीजनेटेड होके वापस आ रहा है। The oxygenated blood from lungs reaches to the left auricle. Look at here. मतलब ये प्योर ब्लड जो है दोबारा लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। मतलब ये इम्प्योर ब्लड राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने के बाद पाल्मोनरी वाल्व के द्वारा ये पाल्मोनरी आर्टरी से होके लंग्स में जा रहा है। लंग्स से प्योर ब्लड आ रहा है कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्या? बाइकास्पिड वाल्व और एओर्टिक वाल्व। मतलब ये लेफ्ट ऑरिकल जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है, दैट इज द पोजीशन वेयर इज अ बाइकास्पिड वाल्व। Oxygenated blood from lungs reaches to the left auricle through pulmonary veins. मतलब ये पाल्मोनरी वेन के द्वारा ये प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में वापस आ रहा है। From the left ventricle, the oxygenated blood is pumped into the aorta. Normally ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा ये एओर्टा के द्वारा पूरा बॉडी में फैल जा रहा है and is supplied to the all body parts. So I want to say the discussion once again. Look at here. Here is superior vena cave and inferior vena cave. ये टू वेना केव जो है इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके कहाँ पे लेके आ रहा है? राइट ऑट्रियम और राइट ऑरिकल। राइट ऑट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आ रहा है? राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में आने के बाद ये पाल्मोनरी वाल्व के द्वारा पाल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में वापस जा रहा है। दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में चेंज होके ऑक्सीनेटेड बन के ये पाल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। दैट इज द प्योर ब्लड। प्योर ब्लड ये लेफ्ट ऑरिकल से द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये एओर्टा के द्वारा पूरा बॉडी में फैल जा रहा है। दिस इज द चेन सिस्टम ऑफ हार्ट। सो स्टूडेंट, I hope all of you understood the discussion and you have to practice the diagram for your annual exam. So, student, for today up to this portion.